गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज दिया था उन्होंने। तो इसमें इन्होंने बताया कि there are 2 point charges q1 and q2 separated by a small distance r, then the electrostatic force acting between the two charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them. Now when we combine these two conditions, we get force of electrostatic force is proportional to the q1 q2 divided by r square, and that is force equal to k q1 q2 by r square, where this k is called electrostatic force constant. Now since force is a vector quantity, so we can represent it in vector f is equal to k q1 q2 by modulus of r square into unit vector r pointing a vector towards the force acting. Now what, अब हमको ये पता करना है कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो नाउ दिस हियर इफ प्रोडक्ट ऑफ q1 एंड q2 इज ग्रेटर देन 0, कब होगा? जब q1 और q2 या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों q1 q2 क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। In this case, the Fe is repulsive. Now, if Q1 into Q2 is smaller than 0, ये कब होगा? जब Q1 और Q2 में से कोई एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। इस केस में हमारा Fe क्या हो जाएगा? It is attractive in nature. तो एक बार फिर से, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ? The 2 point charges separated by a small distance r, then the electrostatic force acting between them is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. On combining, we get electrostatic force is equal to k q1 q2 by r square. If product of q1 and q2 is greater than 0, then the force of electrostatic force is repulsive, and if the product of charges is less than 0, then force is attractive. Now we see the nature of k, the value of this k depends upon the medium. K depends upon the medium in which the charges are placed. जिस मीडियम में ये दोनों चार्ज रखे रहेंगे, K का मान उस पर निर्भर करता है। क्यों? In which charges are placed. क्यों? इस K का मान, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एयर K is equal to 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है बच्चों, और इस K का मान होता है K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड permittivity of free space, और इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.856 into 10 to the power minus 12 per Newton per meter square
कूलम्ब स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अगर हमारा मीडियम चेंज होगा तो इस एप्सिलॉन की जगह उस पर्टिकुलर मीडियम का एप्सिलॉन आएगा और उस तरह से के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बच्चों हम लोगों को देखना है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखना है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि व्हाट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म अब हम थोड़ा बच्चों इस तरह से डील करेंगे कि हम कहते हैं कि दिस R12 represents distance of Q2 from Q1 and F21 represents force on Q2 from Q1। अब बच्चों अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 1 इज इक्वल टू becomes K Q1 Q2 by R12 क्यों? Because it represents the distance of 2 from 1। क्योंकि चार्ज 1 फोर्स लगा रहा है 2 पर, तो 2 की डिस्टेंस 1 से कितनी है, इस तरह से। तो this is it represents the magnitude। this part represents the magnitude of the force। now what is the direction of force? we will multiply with a unit vector representing towards the direction of force। so it will become, how can we calculate unit vector? we divide the vector with modulus of the vector। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा force on 2 due to 1 is equal to K Q1 Q2 divided by modulus of R12। ये स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, ये हो जाएगा Q और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर 1 2। so this is the electrostatic expression for the electrostatic force on 2 due to charge 1 in vector form। Similarly we can write expression for the force on 1 due to 2। force on 1 due to 2, so how can it be written? It can be written as force on 1 due to 2 is equal to K Q1 Q2 divided by R21 का Q into वेक्टर R21। बच्चों एक चीज और भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो दोनों फोर्स होते हैं ये फोर्स म्यूचुअल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है जितने फोर्स से उतने ही फोर्स, हम ये कर रहे हैं अगर Q1 Q2 को किसी फोर्स से रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो निश्चित ही जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा वह भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। कैसे होगा वो हम दिखा रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस हैं, दे फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, मींस एक्शन और रिएक्शन का फोर्स। जितने तेजी से ये इसको रिपेल करेगा उतने तेजी से ये भी इसको रिपेल करेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। कैसे, हम इसी एक्सप्रेशन से दिखा रहे हैं कि हम यहां से क्या कर सकते हैं, F12 can be written as K Q1 Q2 by modulus of R12 का Q into
R21। क्यों हमने R21 को क्यों R12 लिख दिया? क्योंकि कोई भी वेक्टर हो, एक वेक्टर हमारा ए बी हो, अगर ए बी है तो चाहे आप ए बी का मॉडुलस निकालें और चाहे बी ए का मॉडुलस निकालें, दोनों का मॉडुलस क्या होगा? सेम होगा। इसलिए हमने R21 की जगह R12 लिख दिया। नाउ this F12 can also be written as K Q1 Q2 divided by R12 की पावर Q into, हम इस R21 को अगर R12 लिखना चाहे वेक्टर में तो क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? वेक्टर ए बी क्या होता है, वेक्टर बी ए का क्या होता है? अपोजिट होता है। इसलिए हमने R21 की जगह जब हम R12 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो हो गया F12, ये हो गया A Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, और ये माइनस इधर लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R12। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इस एक्सप्रेशन को देखा जाए 1, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? F12 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस F21। तो इस तरह से हमने लिखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दे फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड दे आर म्यूचुअल, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक चीज बच्चों हम लोगों को और भी देखना है इसके साथ ही साथ कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ चार्जेस, व्हाट आर द यूनिट ऑफ चार्जेस। जो हमारा SI यूनिट ऑफ चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? कूलम। द SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम, it is denoted by capital C. Capital C. Now CGS, in CGS system, what is the unit of charge? Unit of charge is equal to state coulomb. State coulomb. What is the relation between the two charges? Relation between the two units? Relation between the two units. 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 state coulomb. State coulomb. तो इस तरह से हम लोग जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, सारा का सारा जो हमारा है वो किस पर है? हमको किसको दिखाना है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ही हम लोग आगे के सारे डेरिवेशन जो हैं इसी के माध्यम से हम लोग डिराइव करेंगे। इसलिए कूलम्ब्स लॉ आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन करना चाहूंगा। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ टेल्स अस अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, which is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, and these two forces are equally the electrostatic forces acting between the two charges are equal in magnitude but opposite in direction. तो इस तरह से बच्चों ये थर्ड लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।